ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، ان دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ ہم سب کو نبی پاک سرور انبیاء نور مجسم علیہ السلام کا امتی اور غلام بنایا ہے، اور حضور علیہ السلام سے جس نے بھی محبت کری وہ اعلیٰ ہو گیا ہے، جس نے بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ اعلیٰ ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور حضور کو جنہوں نے دیکھا صحابی بن گئے، اور آج تک ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان فارسی 4 جگہ بکتے بکتے مدینے آ گئے، مدینے میں خدمت کرنے لگے۔ معلوم چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے پاس آپ کام کرتے تھے اس کا بھائی آ کے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے بھائی کہ آپ سنا ہے جس نے دعویٰ کرا ہے نبوت کا وہ آخری نبی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کھجور کے درخت پہ تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے، ہاتھ سے کھجوریں گر گئیں، اور سبحان اللہ آپ نیچے اترے، مالک سے پوچھنے لگے کیا کہہ رہے ہو کہ محمد آ رہے ہیں؟ اس نے تماچا مارا، اور مارنے کے بعد کہنے کا تم اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں پہلے کبھی میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو مجھے جنونی کیفیت ہو جاتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے نام سنا اور اس کا ہاتھ لگا تو مجھے سکون ملا کہ آج میرے آقا و مولا مدینے کے تاجدار تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شام کا انتظار کرنے لگا، شام ہو گئی، حضرت سلیمان فارسی آپ چل پڑے، کھجوریں باندھ لی آپ نے کچھ پلو کے اندر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پیش کرا۔ حضور نے مسکرائے، حضرت سلیمان فارسی کو قریب بلایا، حضرت سلیمان فارسی نے وہ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا یہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے لے کر سیدنا صدیق اکبر کو وہ کھجوریں دیں، اور چہرہ حضرت سلیمان فارسی کے طرف تھا، اور گفتگو سیدنا صدیق اکبر سے کر رہے تھے کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے کہ محمد صدقہ نہیں لیتے، جاؤ یہ تقسیم کر دو۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان فارسی سمجھ گئے کہ جو 3 نشانیاں بتائی تھیں اس میں سے ایک نشانی پوری ہو گئی ہے، جو آخری نبی آئے گا جس کا نام
नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सदका नहीं लेंगे। और दूसरी निशानी ये बताई थी कि आप तोहफा पसंद करेंगे। और तीसरी निशानी बताई थी कि इमामुल अंबिया सरापाए रहमत नबी वद्दुहा के चेहरे वाले आका, वल्लैल की जुल्फों वाले आका, माज़ा की आंख वाले आका, यदुल्ला के हाथ वाले आका, इमामुल अंबिया सरापाए रहमत नबी की दोनों कंधों के दरमियान मोरे नबुवत होगी। अल्लाहु अकबर। एक तो पूरी हो गई, दूसरी रात आई। अच्छा, हुजूर हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने जब खजूरें पेश करी, हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खजूरें दी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तकसीम करी। एक सहाबी दूध का प्याला लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करा। आकाए दो जहां सरवर अंबिया ने एक घूंट दूध पिया, पीने के बाद हजरत सुलेमान फारसी को वो प्याला दे दिया। आपने खूब पिया, पीना था, आपका अंदर सारे रोशन नूर से अला नूर रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। रात गुजरी, पूरी रात जागते रहे, सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि कल शाम हो, गुलाम से मालिक से छुट्टी हो, हुजूर की बारगाह में जाऊं। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने की तैयारी करी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने खजूरें पल्लू में बांध ली, जैसे कल बानी थी, दूसरे दिन भी खजूरें बानी। हुजूर की बारगाह में आ गए, सलाम पेश करा, हुजूर मुस्कुराए। हुजूर समझ गए ये दूसरी निशानी देखना चाहता है। हुजूर की बारगाह में खजूर पेश करी कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका ये मैं तोहफा लाया हूँ। हुजूर ने खजूरें ली। हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं, हुजूर ने एक खजूर खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, पांच खाई, हत्ता के 10 या 11 खजूरें इमामुल अंबिया ने खुद खाई। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, मेरी किस्मत का सितारा जाग गया, उरूज पे चले गया, चमकने लगा। मैंने कहा आका ने ये कबूल कर ली, ये दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब दिल नहीं करता वहाँ से आने को, मगर गुलाम हूँ, क्या करूँ, वापस जाना पड़ेगा। वापस आए, सारा दिन काम करते रहे। शाम हुई, रात होने लगी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी चल पड़े। जब चले ना आप, तो दिल में ख्याल आया कि दो निशानियां तो पूरी हो गई आखिरी नबी की। एक निशानी ये थी जो सदका नहीं लेंगे, दूसरी निशानी ये थी तोहफा कबूल करेंगे। अब तीसरी निशानी बड़ी है, और वो निशानी कैसे देखूंगा। अल्लाहु अकबर। मैं जाऊं, अल्लाह ऐसी हवा चलाए कि हुजूर की कमीज़ ऊपर हो जाए और मैं हुजूर की मोरे नबूवत की ज़ियारत कर लूँ। अल्लाहु अकबर। या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सहाबी से कहें कि मेरी कमीज़ थोड़ी ऊपर करो, या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से खुजालने के लिए कहें कि मेरी कमर पे थोड़ी सी खुजा लो। अल्लाहु अकबर। मैं किसी से कह तो नहीं सकता, हुजूर से कह तो नहीं सकता। ये दिल में ख्याल आ रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, प्लानिंग बनाते हुए जा रहे हैं। कुर्बान जाऊं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को। आला हज़रत फरमाते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पिला को सलाम। अरे हजरत सुलेमान फ़ारसी रस्ते के अंदर ये दिल में सोच रहे हैं, अभी हुजूर की बारगाह में पहुंचे नहीं हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान फ़ारसी आकर सामने बैठ गए। रश ज़्यादा था, सहाबा बैठे हुए थे। हजरत सुलेमान फ़ारसी बैठ गए। हुजूर ने सुलेमान फ़ारसी को बुलाया, मुस्कुराए और बुलाने के बाद कहने लगे, सुलेमान तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम मेरे पीछे बैठो। जब वो पीछे गए कमर के, अल्लाह अकबर, पुष्ट के पीछे गए तो हुजूर ने अपने हाथ से अपना दामन ऊपर कर लिया। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी, अल्लाह अकबर, हजरत सुलेमान फ़ारसी, कुर्बान जाऊं, आप खूब बोसा लेने लगे, अरे चूमने लगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, सलमान बस कर दो, आप आंखों में नम है, चेहरे में गम है, दिल पे अलम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुजूर ने अपने हाथ से पकड़ा, आप हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गए, पाँवों को चूम रहे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुलेमान बस कर दो। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज जो सुकून मिला है, आज जो करार मिला है, 4 जगह बिकता हुआ आया हूँ। किसी की चप्पलों को उठाता रहा हूँ, किसी के बर्तन धोता रहा हूँ, किसी के कपड़े धोता रहा हूँ, किसी की झाड़ू लगाता रहा हूँ, किसी की धुतकार खाता रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपका चेहरा अनवर देखने के लिए, आपकी बारगाह में आने के लिए। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने कदमों से दूर ना करो। काफी देर तक ज़ारों कतार होते रहे। हुजूर ने जब उठाया,
हज़रत सुलेमान फ़ारसी के पेशानी का बोसा लिया, बोसा लेना था। अल्लाह अकबर, सहाबा देख रहे थे। कुर्बान जाऊं, हुजूर ने जब बोसा लिया, हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, आपने कलमा तैयब पढ़ लिया और चलते रहे, आते रहे, जाते रहे। गुलाम उसके थे। एक दिन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका कब तक इसकी गुलामी करूँगा, कब आज़ाद होऊंगा? सारी उम्र गुजर गई, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब काम नहीं होता, हाथों में लर्जा होता है, अरे सारा दिन थक जाता हूँ। या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया, मैं आपको खरीद लेता हूँ, कोई तुम्हें खरीदेगा? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे कौन खरीदेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र तक लिखा हुआ है किताबों में 350 साल थी, 250 साल थी। अल्लाह अकबर, 300 साल उम्र वाला, 350 साल उम्र वाला, 250 साल उम्र वाला, कि हाल क्या होगा। मगर फिर भी इतनी मोहब्बत थी हुजूर से, रोज़ाना हुजूर की बारगाह में आते जाते। हुजूर ने फरमाया, मैं खरीदने को तैयार हूँ। कुर्बान जाऊँ, हज़रत सुलेमान फ़ारसी को खरीदने के लिए हुजूर तैयार हो गए। कुर्बान जाऊँ, हज़रत सुलेमान फ़ारसी खुशी में आंखों में आंसू आ गए। हुजूर से कहने के, या रसूल अल्लाह, बेकार को खरीदने के लिए तैयार हो? हुजूर ने फरमाया, मैं जानता हूँ सुलेमान। हज़रत सुलेमान फ़ारसी अपने मालिक के पास गए, यहूदी के पास जाके कहने लगे, मुझे बेचोगे? कहने, कैसे बेचूं तुझे? कहने, मेरे को तुझे कौन खरीदेगा? फरमाया, मुझे मोहम्मद खरीदने को तैयार हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वह के चेहरे वाले आका खरीदने के लिए तैयार हैं, वल्लेल की जुल्फों वाले आका खरीदने के लिए तैयार हैं, माज़ाब की आंख वाले आका खरीदने को तैयार हैं, यदुल्ला के हाथ वाले आका मुझे खरीदने के लिए तैयार हैं। और भी बैठे हुए थे यहूदी के बाद, बड़ा मालदार था। लोग कहने लगे, मना ना कर, वो कहेंगे बेचा नहीं। अरे इतना पैसा बता दे, इतना माल बता दे, इतना कुछ बता दे, वो खरीद ना सकें और ये परेशान हो जाए। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, क्या? कहने लगे, 1 पाव सोना मंगवा ले, 2 किलो चांदी मंगवा ले इससे, और इसके एवज, और कहो कि एक बाग लगाना है जिसके अंदर 100 दरख्त लगेंगे, दरख्त जवान होंगे, खजूर तैयार होगी, उस साल की खजूर उतार के देने के बाद सुलेमान तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आंखों में नम है, चेहरे पे गम है, दिल पे अलम है। ख्याल आया कि 1 पाव सोना कहाँ से दिए जाएगा, ख्याल आया कि 2 किलो चांदी कैसे दी जाएगी। 100 दरख्त लगाने में जवान होते होते 13 साल बाद फल आता है, 13 साल और भी इसकी गुलामी में रहना पड़ेगा। आंखों में नम आया, चेहरे पे गम आया, दिल पे अलम आया। हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, सर को झुका लिया। हुजूर ने पूछा, बताओ तेरे मालिक ने क्या कहा है? या रसूल अल्लाह, बेचने को तो तैयार हो गया है, मगर उसकी शर्तें बड़ी खतरनाक हैं। वो कहता है, 1 पाव सोना ला के दो, 2 किलो चांदी ला के दो, 100 दरख्त लगाए जाएंगे, वो जवान होंगे, जवान होने के बाद उसमें से जो फल लगेगा वो फल उतार के मुझे दो। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाने लगे, सुलेमान परेशान क्यों होते हो? सिर्फ उसने 1 पाव सोना ही मांगा है, आज तो वो 1 पहाड़ मांगता सोने का। अल्लाह के हुक्म से ये पहाड़ सोने का हो जाता। कुर्बान जाऊं, मांगा ही 1 पाव है, 2 किलो चांदी मांगी है, तुम कहते तो इस जमीन को सारी को चांदी बना देता। अल्लाह अकबर। ये तो सिर्फ 100 दरख्त की बात है, कई 1000 दरख्त बोलते तो लग जाते। हजरत सुलेमान फ़ारसी के चेहरे पे खुशी का आलम था। आप कहेंगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना दरख्त लगाने 13 साल गुजरेंगे। हुजूर ने फरमाया, सुलेमान बताओ कौन सा दिन है आज का? अर्ज करी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिन बुध का है। फरमाया, अगले बुध तलक तुम आज़ाद हो जाओगे, अगले बुध तलक आज़ाद हो जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर दरख्त भी तैयार हो जाएंगे, पाव सोना भी दे दिया जाएगा, 2 किलो चांदी भी दे दी जाएगी। आप आगे आके कहने लगे, तुझे सोना भी मिल जाएगा। वो कहना, कब? कहने, इसी हफ्ते के अंदर चांदी भी मिल जाएगी, दरख्त भी मिल जाएंगे। उसने कहा, 100 दरख्त लगाने हैं सुलेमान, जमीन कलर वाली है, जिस जमीन के ऊपर दरख्त लगता नहीं है, फसल होती नहीं है। कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा मुस्कुराए, आकाए दो जहां मुस्कुराए। कुर्बान जाऊं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी दूसरे दिन शाम में
हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, जाकर सर को झुकाकर बैठ गए। कुछ देर गुजरी, एक सहाबी रसूल आए, हुजूर की बारगाह में तोहफे में एक अंडा पेश किया। हुजूर ने फरमाया सुलेमान करीब आओ। हजरत सुलेमान फारसी करीब आए, फरमाया जरा अपनी चादर का पल्लू खोलो। जो दस्तार थी, पटका था, उसको करीब करा, उसको बोला बांध लो, जाओ ले जाओ उसको सोना, वहाँ जाके खोल के उसको दे देना। जब वहाँ जाकर खोला, अल्लाह अकबर, वो अंडा नहीं था, वो सोने का अंडा बन चुका था। वो हैरान होने लगा कि सिर्फ पाव सोना मांगा, अरे कोई 50 किलो मांग लेता, अरे 1 मन मांग लेता, मुझे क्या पता कि पाव सोना मिल जाएगा। वो नबी जिसके घर में 3 दिन तक फाका होता है, कभी खाने को होता है, कभी नहीं होता है, पाव सोना दे दिया। काश इन लोगों के कहने में नहीं आता, मन सोना मांग लेता। इंसान की तमा है, इंसान की हिर्स है, इंसान तो कहता और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। ये शुरू से चलता हुआ आया, आज की बात नहीं है। मगर जो उसने मांगा था सोना मिल गया। एक दिन गुजरा, दूसरी रात फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत सुलेमान फारसी फिर गए। जाके बैठे, हुजूर ने फरमाया सुलेमान क्या सोच रहे हो, जाओ रेत लेके आओ। अपनी दस्तार के अंदर 2 किलो से ज़्यादा रेत लिया है, फरमाया जाओ इसको ले जाओ। हुजूर के हाथ लगने थे, देखते ही देखते वो चांदी बन गई। जब जाके गए, पेश करी कि नहीं ले भाई ये आपके लिए लाया हूँ। जब खोल के देखा तो 2 किलो से ज़ाहिद चांदी थी। कहने काश मैं ज़्यादा चांदी मंगा लेता। इंसान है ना, तमा है ना, दुनिया की मोहब्बत है ना, दुनिया से प्यार है ना, कुर्बान जाऊँ आक़ाए दो जहाँ पर। वो सिर्फ मिट्टी थी, चांदी बन गई। अब बारी आ गई 100 दरख्त की। अब ज़रा अकल जो है हैरान रह जाती है, सोच में पड़ जाती है। कलर वाली ज़मीन हो, अरे जितना बड़ा कारीगर हो, वो कभी भी ज़मीन कलर वाली के ऊपर दरख्त नहीं लगा सकता। अल्लाह का हुक्म हो तो लग जाता है। मगर कुर्बान जाऊँ जो वद्दुहा के चेहरे वाले आका, वल्लैल की जुल्फ़ वाले आका, माज़ा की आँख वाले आका, यदुल्ला के हाथ वाले आका, इमामुल अंबिया पे कुर्बान जाऊँ। आका दो जहां ने फरमाया सुलेमान 100 खड्डे खोदो, 100 खड्डे खोदो। जब आपने 100 खड्डे खोद लिए, फरमाया हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया, अली इधर आओ। अली करीब आए, फरमाया 100 गिटलियाँ ले आओ, 100 दाने खजूर की गिटलियों के ले आओ, दरख्त लगाने हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पूरे मदीने में घूमे, मगर कहीं से खजूर की गिटलियाँ मयसर नहीं हुई। कोई कहने लगा हम अपने जानवरों को डाल देते हैं, कोई कहने लगा हमने जला दी। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में हुजूर ने फरमाया अली क्या बात है या रसूलल्लाह, गिटलियाँ कहीं से नहीं मिली। सुलेमान फारसी सुन के बड़े परेशान थे। हुजूर ने फरमाया जाओ बाग के अंदर, जो टूटी हुई हो, काणी हो, सूखी हो, आती हो, सो ले आओ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम लेकर आए। हुजूर ने फरमाया सुलेमान कल चलेंगे। हज़रत सुलेमान फारसी को साथ लिया, फरमाया मशकीज़े में पानी भर लो। हज़रत अली को फरमाया मैं गिटली रखूँगा, सुलेमान मिट्टी डालेगा, उसमें से पानी डालना। उसके बंदे देख रहे थे कि कलर वाली ज़मीन है, इसमें कभी भी फसल नहीं होगी। जाके बताया, उसने कहा कोई मामूली शख्सियत का नाम मोहम्मद नहीं है, वो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो इशारा करे तो मशरिक के बजाय मगरिब से सूरज निकल जाता है। तुम क्या समझ रहे हो? जाओ उसको ख़त्म कर दो, गिटलियाँ निकाल दो। सारी गिटलियाँ निकाल दी। उनका अब कहाँ इसमें फसल होगी? उनको ये तो नहीं पता था सुबह ही दरख्त तैयार हो जाएंगे। अल्लाह को सुबह देखा तो दरख्त तैयार थे, दरख्त तैयार थे, दरख्त में खजूर भी लगी हुई थी, पक भी गई थी। हज़रत अली, हज़रत सुलेमान फारसी सुबह खुशी खुशी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह 100 दरख्त तैयार हो गए जो 13 साल के अंदर जवान होने थे। मेरे आका का हाथ लगना था, दरख्त बनना था। रब करीम है, फरमाया महबूबा जो तू कह देगा वो कर दूंगा, इसलिए अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। कुर्बान जाऊँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ भी जो हुजूर अलैहिस्सलाम से जुड़ गया वो आला हो गया। हज़रत सुलेमान फारसी के नहीं या रसूलल्लाह मैं उसको खजूरें दे दूँ? फरमाया नहीं है, अपने भाई अली को ले लो साथ, जिसका कोई नहीं होता
وہ جاتا ہی کہہ رہا تمہارے تو وارث ہیں، جاؤ ساتھ میں۔ حضرت علی گئے، جا کے کہنے لگے یہ تیری کھجوریں ہیں، اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ حضور کا غلام ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور کی بارگاہ میں لیا ہے۔ سوچو لوگوں کہ جب اللہ اپنے حبیب پر اتنا کرم کرتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، جو رات کو گٹھلیاں لگائیں تو صبح درخت تیار ہو جائیں، وہ نبی اعلیٰ جو انگلیوں سے 313 چشمے جاری ہو جائیں، صحابہ پانی پیتے رہیں، 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہوں، 313 صحابہ پانی بھی پی لیں، ارے جانوروں کو بھی پلا دیں، مشکیزیں بھی بھر جائیں، پانی ختم نہیں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے حضور سے محبت کری وہ اعلیٰ ہو گیا۔ جس نے حضور سے محبت کری، حضور نے فرمایا سلمان مانگ، اور کچھ مانگ، اور کچھ مانگ۔ شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مجھ کو اپنے غلامی کی دی تو سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ دعا چاہیے، ان دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، ان دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔